Good morning, church. We welcome you all to this Sunday morning service. Shall we all read this verse from the Bible? Ephesians chapter 1:17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Let's all worship the Lord. Let's sing this song. Open the eyes of my heart, O Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's sing. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy eyes of my heart. Holy eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Holy eyes of my heart. Oh, holy eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. So Lord, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Holy eyes of my heart. I want to see Holy, you. holy, I want to see you. I want to see you. Shall we all worship the name of the Lord? It's a beautiful name, wonderful name, Jesus. I want to see you. आइए उस महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, उसके नाम को पुकारेंगे।
जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। परमेश्वर आपका नाम महान है, मीठा नाम, सुंदर नाम, पावन नाम। आइए मिलके गाएंगे। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। ओ जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। आइए सब मिलके उसकी आराधना करेंगे। यीशु नाम, सुंदर नाम, जय जय राम। Yes, Lord, we worship your name, O Lord. Beautiful is your name, O Lord. तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। ओ जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। ओ जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। Good morning, church. सुप्रभात कलीसिया। Welcome to Sunday morning service. रविवार की सभा में आपका स्वागत है। We are so glad to have you all. हम बहुत खुश हैं आपको यहाँ पर देखकर। This morning, another Sunday, और एक और नई सुबह और एक नया रविवार, and we are going to hear the word of God.
और हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। What a worship we had by Sandeep and his team. कितनी अद्भुत आराधना थी संदीप और उनकी टीम के द्वारा। Praise God for everything. इन सब के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। At this moment, we want to welcome, if you're watching us for the first time, और हम इस पल उन लोगों का स्वागत करेंगे जो पहली बार इस सभा को देख रहे हैं। you can write a comment in a comment box. You will get a gift from our team. और आप अपना संदेश डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में और आप हमारी टीम से तोहफा पा सकते हैं। Even if you're watching us for the second time, I appreciate you to write a comment in a comment box. You will get a gift from our team. और यदि आप दूसरी बार देख रहे हैं तो आपका भी स्वागत है और आप कमेंट लिख सकते हैं और हमारी टीम से एक तोहफा पाएंगे। Church, our Bible college is on. कलीसिया हमारा बाइबल कॉलेज शुरू है Our devotions are on every day. और हर दिन हमारा डिवोशन भी हो रहा है। Men's time and ladies' time is on. पुरुषों का समय और स्त्रियों का समय भी चालू है। We invite you to join us and just stay edified through all these meetings. और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रोत्साहित रहिए। We also encourage you, if you have anybody has any prayer needs, we ask you to write and speak to our pastors and they will pray for you. और हम आपको प्रोत्साहित करते हैं, यदि आपको कोई प्रार्थना की जरूरत है तो आप हमें लिख सकते हैं, तो पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। As account of seeing what God is doing in our lives, we are going to hear a short testimony from our team, from our church members. So short AV is coming after this और हम announcement. तो अभी थोड़े ही पल में ये देखेंगे जो ये परिस्थिति चल रही है, इसके बीच में परमेश्वर की गवाहियां क्या है लोगों की, और उसके लिए हम छोटा सा एक एवी देखेंगे। And after that, you will be hearing Pastor Binu's great message. और इसके बाद आप बहुत ही अद्भुत पास्टर बीनू के द्वारा एक संदेश सुनेंगे। Have expectation from God. परमेश्वर से आशाएं रखें। Thank you. धन्यवाद। Let's pray for the offering. और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this beautiful day. पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। Lord, we believe you, whatever we have, whatever we get is all because of you. और हम विश्वास करते परमेश्वर जो कुछ हमारे पास है वो उस सब के लिए हम आप पर भरोसा रखते हैं। And as you commanded, we bring the first fruits of our hand to you, Lord. और जैसे आपने हमें आज्ञा दी है कि हमारे हाथ का जो पहला फल है हम आपके पास लाएं। And also, Lord, we are bringing our overflows to you. और जो कुछ भी हमारे इसमें बढ़ोती है उसको भी आपके पास लाते हैं। Lord, you bless our cups. और हमारे प्यालों को आप आशीषित कीजिए। Bless our heart. हमारे हृदय को आशीषित कीजिए। Open our hearts, Lord. और हमारे हृदय को खोलिए। Speak to our hearts today. हमारे हृदय से बातें कीजिए। Anoint us. अभिषेक कीजिए। As we are sitting in home and hearing you, Lord, you be with us right now. और जैसे ही हम घर पे बैठ के ये संदेश सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में इस पल रहिए। Thank you so much, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना Amen. करते हैं, आमीन। Thank you. धन्यवाद। Good morning, church. We are now in the midst of COVID-19. We have seen and heard many sufferings, destructions, death, isolation, and many more issues that the world is facing now. And apparently, we are also a part of it. But we have another story here from our brothers and sisters about what God has done in their lives during this period, helping them to grow spiritually. Let's hear them. मेरा नाम मनीषा है और मैं परमेश्वर का पास्टर बिनू का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मौका दिया है इस लॉकडाउन में, जो मेरे परिस्थिति के बारे में जो परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो छोटी सी टेस्टमनी है मेरे जीवन की। अभी 2-3 दिन पहले मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं रात भर सोई भी नहीं, वही चीज़ें लेके सोच रही थी क्या करूं। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर से कहा तू मुझसे बातें कर और मैंने बाइबल खोला। परमेश्वर ने मुझे भजन संहिता 34 दिया, उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातें की और वो डर था पूरी तरह से निकल गया। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उस चीज़ों के लिए कि उस वचन में परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूँ, उस विपत्तियों से मैं तुझे बचाऊंगा। और हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातें की और मैं पूरी तरह से मेरे अंदर से वो डर निकल गया। इसलिए परमेश्वर का
धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जो पहले समय हम नहीं दे पा रहे थे एक दूसरे के लिए, इस लॉकडाउन में हम एक दूसरे को समय दे पा रहे और एक दूसरे को उस वचन के द्वारा इंकरेज करते हैं। और परमेश्वर हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ है और इसके आगे भी वो हमारी परिस्थिति में साथ रहेगा, हम जानते हैं। और मैं जो भी अविश्वासी के साथ जो भी बातें करती हूँ, कितने डरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी वो डर नहीं देता। उस वचन के द्वारा वो हर एक डर निकाल देता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं आज आपके साथ एक गवाही बांटना चाहता हूँ। हम लोग नेपाल में थे, तो वहाँ पर यहाँ पे आने के लिए, मुंबई आने के लिए हम लोग तैयार हुए। मैं और मेरा भाई मेरे साथ में था। तो वहाँ से 17 मार्च को हम तैयार हुए और यहाँ पे आने के लिए फिर सफ़र में जैसे जैसे माहौल बिगड़ रहा था तो काफ़ी लोग उतर रहे थे सफ़र में ही, है ना। तो हमारे पास भी ऑप्शन था कि हम भी उतर जाएं, लेकिन है ना परमेश्वर की इच्छा थी, है ना। यहाँ पे परमेश्वर यहाँ पर लेकर आया और जैसा पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है ना कि जो हमने मन में अभी तक सोचा नहीं, जो हमारी आँखों ने नहीं देखा, वो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार कर रखी हैं। और जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो परमेश्वर ने यहाँ पे इस्तेमाल किया ना। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, 25 से 30 तक लोग यहाँ पे रहते हैं, वो आज परमेश्वर को जान रहे हैं। मैंने तो यहाँ पे सोचा था कि मैं मुंबई पहुँचकर काम पे लगूँगा और पैसा जमा करूँगा, मेरी तो यही सोच थी। लेकिन परमेश्वर ने है ना कुछ और ही सोच के रखा था। परमेश्वर ने हमारे लिए जो सोच के रखा है ना, वो भला ही है और अच्छा है। यहाँ पे मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग यहाँ पे परमेश्वर को जान रहे हैं, परमेश्वर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। और काफ़ी लोग जो यहाँ पे बैठते हैं बाइबल स्टडी में, वो सब मुझे कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें प्रार्थना करना सिखाओ और बाइबल पढ़ना सिखाओ। परमेश्वर का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जय मसीह की। आमीन। Hello everyone, I'm Pradeep from Worship Team. Hope you all are doing great. At this time I want to share a 2-minute testimony regarding what God is teaching me in this season. Yes, most of you know that I've been jobless for almost a year and God is really teaching me a lot of things and is helping me to grow in Him. At this time I want to say 3 things: that no matter what, God is always faithful. He will never forsake us. We may not feel that all the time, we may not see that all the time, but God is still faithful and He will give us grace to every situation. And I'm sure that He knows the best and He will give us the best in His time. In this time of pandemic, the best thing which we can do is stop asking questions and start trusting the Lord. We may not get all the answers for all our prayers. If you do, then praise God. Sometimes we may not understand the reason behind the consequences of financial crisis, physical challenges, and family and job trials. Maybe we don't have to understand the reason why certain things went in that way. The best thing which we can do is keep trusting the Lord and praying. I believe that God will be glorified when we trust Him like a child. And God is more concerned about the process which is happening inside our hearts rather than the outside work. And one fine day, I'm sure that we will be able to thank the Lord for the process that He has allowed us to go through. And I don't know how long I will be away from my wife. I don't know how long it takes for me to get a job. But one thing I can say, that God is still in control and God is still faithful. And He's giving me grace for every situation. God is good all the time. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Jeremiah 32:27. तेरे नाम के
नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। विराजमान प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Okay, let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for this beautiful morning. पिता, हम इस अद्भुत सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। You are here, आप यहाँ पर उपस्थित हो and wherever we are listening, Lord, your presence is there. और जहाँ कहीं हम सुन रहे हैं परमेश्वर आपकी समक्षता वहाँ है। Speak to our hearts today. हमारे हृदयों के साथ बातें कीजिए। We need your word, Lord. आपके वचन की हमें जरूरत है परमेश्वर। Thank you, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। This is another Sunday morning. एक और इतवार की सुबह Again, we are meeting like this. और वापस हम इस तरह से मिल रहे हैं। We heard that 31st, the lockdown has been extended to 31st of May. और हम जानते हैं कि जो लॉकडाउन है 31 मई तक बढ़ाया गया है। Yeah, that means we have to do like this. और ऐसे मतलब हमें ऐसे ही करना होगा। Even if we meet people outside, we can't see their face have covered. और अगर हम लोगों को बाहर भी मिलते हैं तो हम उनको देख नहीं पाते हैं क्योंकि उनके चेहरे ढके हुए हैं। You have to figure out who is this. और हमें सोचना पड़ता है कि ये कौन है। Wow, what a unique situations we are. और कितने अद्भुत परिस्थिति में हम आज हैं। But God is good. लेकिन परमेश्वर अच्छा है। God is in this situation. परमेश्वर इस परिस्थिति में है। And recently I was hearing a news about Dr. Ravi Zacharias. हाल ही में मैं रवि ज़करिया की एक समाचार पढ़ रहा था। And he had a surgery. और उनकी एक सर्जरी हुई। Because of the back pain. उनकी पीठ दर्द की वजह से। But during the surgery or after the surgery, they found out that he has a cancer, which is a rare kind of cancer. और उस सर्जरी के दौरान ही उन्हें पता चला कि उन्हें एक अलग किस्म का कैंसर है। And recently the doctor said it can be cured. और हाल ही में डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उसका कोई इलाज नहीं है। And they told him to go back home. और उन्होंने उन्हें बताया कि आप घर वापस जाइए। And he is 73-year-old Indian origin.
और वो 73 साल के हैं और भारतीय हैं। and he's based in the US, Atlanta. अभी अटलांटा यूएस अमेरिका में वो रहते हैं। Amazing man of God. परमेश्वर के अद्भुत दास। And he preached the gospel to many thousands and thousands of people. और बहुत हजारों लोगों को परमेश्वर का वचन उन्होंने And सुनाया। I was thinking about like this way. और मैं इस तरीके से मैं सोचना चाहता Oh my था God, this is your servants. और कि ये तो आपका दास है We are our people, your people. और हम आपके लोग हैं Why this happening? और ये ऐसा क्यों हो रहा है। There's no difference between the wicked and the righteous. तो बुरे लोग और अच्छे लोग में कोई फर्क नहीं। And I was just thinking about this world. और इस दुनिया के बारे में मैं सोच रहा था। God says, परमेश्वर कहता है, I am defeating sin मैं पाप को हरा रहा हूँ gradually धीरे धीरे or progressively, या फिर बढ़ते बढ़ते, not instantaneously. एक ही साथ नहीं, अचानक नहीं। When God created this world, it was a perfect world. परमेश्वर ने जब इस दुनिया की रचना की तो परिपूर्ण थी। Last Sunday also I shared about that. और पिछले इतवार को भी मैंने आपके साथ बातें की। God created a perfect world. परमेश्वर ने एक पूरी परिपूर्ण दुनिया की रचना की। How can a perfect God create an imperfect world? It's impossible. कैसे एक परिपूर्ण परमेश्वर एक अपरिपूर्ण दुनिया की रचना कर सकता है? ऐसे हो ही नहीं सकता। But in the creation, लेकिन इस रचना में God has given the human being a free will. परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति को एक स्वेच्छा दी है। God has given the angels also free will. और परमेश्वर ने दूतों को भी स्वेच्छा दी है। The free will means you can choose what you want. स्वेच्छा मतलब आप चुनाव कर सकते हो जो आपको चाहिए उसका। And man has that power to choose. और मनुष्य के पास वो अधिकार दिया है कि वो चुनाव कर सकता है। But with the free will, लेकिन उस चुनाव के साथ there is साथ also a risk of evil or sin coming into this world. एक खतरा है कि बुराई और पाप इस दुनिया में आ सकता है। Bible says clearly, और बाइबल खास रीति से बताती by है, one man sin entered into this world. एक मनुष्य के पाप की वजह से पाप इस दुनिया में प्रवेश किया। We've seen it in our world. और हमारी दुनिया में हमने ये देखा है। We've seen it in our own lives. हमारे खुद के जीवन में हम देखते हैं। Why God allowed that? और परमेश्वर ने ऐसा होने ही क्यों दिया? Why can't He create a world with free will but no possibility of doing evil? क्यों उसने ऐसी दुनिया नहीं रची जिसमें स्वेच्छा हो लेकिन अपनी इच्छा न पूरी कर सके? Why did He create the world? उसने दुनिया को ही क्यों बना दिया? Like this whole lot of mess right now. और अभी इतनी जो गड़बड़ी हो चल रही है, We are in a messy condition. हम बहुत ही गड़बड़ी वाली परिस्थिति में हैं। I want to give that hope in this message. लेकिन इस संदेश में मैं आपको ये आशा देना चाहता हूँ। God says, परमेश्वर कहता है, yeah, you say like I can counsel God based upon all the situations. हाँ, मैं परमेश्वर को सलाह दे सकता हूँ इस सारी परिस्थिति के ऊपर आधारित होकर। I can ask God why you created this world. मैं परमेश्वर को पूछूंगा कि तुमने दुनिया क्यों रची? Oh, okay, you create the world, but why He gave the free will to the man? हाँ, तुमने दुनिया को तो रचा लेकिन फिर मनुष्य को स्वेच्छाएं क्यों दी? Like why you like okay give the free will, but there is no possibility of choosing evil. तो स्वेच्छा तो दे दी लेकिन उसके साथ फिर ये बुरा चुनाव करने के भी मौका क्यों दे दिया? God says, परमेश्वर कहेगा, I am a all wise God. कि मैं सबसे बुद्धिमान ऐसा परमेश्वर हूँ। I have wisdom. मेरे पास बुद्धिमत्ता है। It's called in the theological we say omnisapiens. और बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार हम उसको बोलते हैं omnisapiens शब्द है। Omnisapiens meaning is all wisdom. इसका मतलब है पूरी बुद्धिमत्ता वाला। God says that if I want to attain the best, I know I'll always choose the best way. अगर मुझे कुछ बहुत ही अच्छी चीज अगर पानी है तो मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ही करता हूँ। And this is exactly I'm doing that way. और उसी तरीके से अब मैं कर रहा हूँ। That's what I created this world, perfect. इसीलिए मैंने इस दुनिया को रचा है परिपूर्ण। But I also gave the human being created in my own image with a free will.
हाँ, मैंने मनुष्य को जो मेरे ही रचना में रचा गया है उसे स्वेच्छा दी है। I am going to honor them till their life, all their life, their free will. और उनके पूरे जीवन में उनकी स्वेच्छा के अधिकार का मैं आदर करूंगा। I'm not going to force them और मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, because it is a violation of my own nature. तो मेरे स्वभाव के विरुद्ध मैं जाऊंगा अगर करूं तो। I know they will go against me. मुझे पता है कि वो मेरे विरोध में जाएंगे। I know there will be sickness will be coming. हाँ, मुझे पता है कि बीमारियां होंगी। I know there will be wars and the bloodshed will happen. हाँ, मुझे ये भी पता है कि लड़ाइयाँ और खून भी बहेगा। I also know that this trouble comes houses and nations. और मुझे पता है कि ये परेशानी घरों में और देशों में होगी। But God says, परमेश्वर ये कहता है, लेकिन I'm going to achieve the best thing throughout in this mess. लेकिन इस गड़बड़ी में सबसे अच्छी चीज को मैं पाऊंगा। This is what He is doing. और यही वो कर रहा है। Like we seen even the believer's life going through tough time. और हम देखते हैं कि विश्वासी का जीवन बहुत परेशानी से गुजरता है। As we heard some testimony today. आज जैसे हमने कुछ गवाहियां सुनी, Beautiful testimonies. अद्भुत सुंदर They गवाहियां। are in the midst of problems. इस परेशानी के बीच में वो है, You may be also. और शायद आप भी हो। Just listen to Pradeep's testimony. और प्रदीप की गवाही जो हमने सुनी, He is in a trouble. वो परेशानी में है। He doesn't have a job. उसके पास नौकरी नहीं His है, family is away. उसका परिवार दूर है। But then we come to this point. लेकिन इस जगह पर हम पहुंच जाते हैं God is all wise God. कि परमेश्वर सर्व बुद्धिमान ऐसा He परमेश्वर is है। attaining the best thing throughout in this time. और इस समय में सबसे अच्छी चीजों को ही वो कोशिश कर रहा है कि वो पाए। God says, परमेश्वर ये कहता yeah, है, I could have been done not creating a world. हाँ, अच्छा होता मैं दुनिया नहीं बनाता, I could have done that. मैं ऐसा कर सकता था। I was not forced to create this world. मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी कि दुनिया बना ले, God, create this world. कि दुनिया बना लो परमेश्वर, There is no force. कोई जबरदस्ती नहीं थी। But God said, I created this world लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने इस दुनिया को रचा because I wanted that. क्योंकि मुझे वो चाहिए था, I wanted it. मुझे चाहिए था। I wanted to share my love, express my grace. और मैं अपने प्रेम को बांटना चाहता था, मेरे अनुग्रह को दर्शाना चाहता था, To creatures और इन रचना को which made in my own image. जो मेरे ही रूप में रची गई है। It's like having mangoes. और सोचिए कि जैसे आम होना, आम लेना, Okay, we got some mangoes in a box. और हम बक्से में आम को लेकर आए, The person is saying, you're giving it free. और लोग अगर कहते हैं आपको कि वो मुफ्त में दे रहे There are तो, few mangoes are like rotten. लेकिन उसमें से कुछ आम खराब है, But you can take, but the rest are good. लेकिन बाकी सब तो ठीक है, आप ले सकते हो। We say, yeah, that's awesome. तो आप कहोगे बहुत अच्छा है Like eating that good mangoes कि उन अच्छे आम को खाना, is better than not eating a mango. ये तो आम ना खाने से तो बेहतर है। It's like God is saying that creating a world with possibility of evil and sin is better than not creating a world. इसी तरीके से परमेश्वर कहता है कि दुनिया ना रचने के बजाय दुनिया जिसके साथ बुराई है उसके साथ रचनी अच्छा है। And this is what God has done. और परमेश्वर ने यही किया We है। cannot outsmart God हम परमेश्वर से बढ़कर नहीं सोच because सकते, He is all-knowing God. क्योंकि वो सब जानने वाला परमेश्वर है। And thinking about people, the believers who are sick. और उन विश्वासियों के बारे में मैं सोच रहा था जो बीमार है, Our pastor, Pastor Carl, अष्टकाल के बारे में, he is sick for many years. इतने सालों से वो बीमार We चल are रहे हैं, praying for the healing. और हम प्रार्थना कर रहे हैं उनकी चंगाई के लिए। But लेकिन God says, परमेश्वर कहता है, I am defeating sin gradually. मैं धीरे धीरे पाप को हरा रहा हूँ, I'm defeating sin. मैं पाप को हरा रहा हूँ। I was captivated by these words. और इन शब्दों से जैसे मैं बिल्कुल ही आकर्षित हो I गया, can see lots of evil. और मैं देखता हूँ इतनी सारी बुराई There is a corruption. और भ्रष्टाचार There is ungodliness. और अभक्ति। God says,
परमेश्वर कहता है with my people, मेरे लोगों के साथ I am defeating sin gradually. मैं धीरे धीरे पाप को नष्ट कर रहा हूँ। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। God did a plan. परमेश्वर ने योजना How बनाई he did this. और कैसे उसने किया। He did not destroy the sin immediately. उसने तुरंत ही पाप को ऐसे नष्ट नहीं किया। When sin entered, जब पाप ने प्रवेश he did किया not destroy the sin. उसने तुरंत पाप को नष्ट नहीं Now किया almost 6,000 years passed by. और लगभग 6000 साल बीत गए हैं Sin and evil is multiplying. और पाप और बुराई बढ़ती गई है, बहुत ही दुगनी हो गई It is है, not yet destroyed. अब तक नष्ट नहीं हुई We है। also know the power of Satan. और हम शैतान के सामर्थ को भी जानते हैं Still he is active. और अभी भी वो काम कर रहा But है। I want to say one thing as a believers today. लेकिन एक विश्वासी होने के नाते एक चीज मैं कहना Like चाहूंगा, God is producing godly products like you and me, like in his son's image. और परमेश्वर आज उसके बेटे के रूप में आपको और मुझे ऐसे सामानों को बना रहा He is है making godly products. और ऐसे परमेश्वर के सामानों को वो बना रहा है। People like you and me, like made in his image, now conforming to his son's image. और आप और मेरे जैसे लोग जो परमेश्वर के रूप में रचे हैं, अब उसके बेटे के रूप में वो बदल रहा है। God did a plan. परमेश्वर ने एक योजना बनाई। First he created a world, पहले उसने दुनिया को रचा created the world with the man with the free will. और ऐसे मनुष्य के साथ रचा जिसको स्वेच्छा दी। He also allowed evil to enter into this world, or sin to enter into this world. और उसने मौका भी दे दिया कि बुराई और पाप इस दुनिया में प्रवेश करे। He is not the source of evil, by the way. और वो इस पाप का स्रोत नहीं है He is not the one, the originator of the evil. और इस बुराई का वो कर्ता भी नहीं है, But he allowed that to happen. लेकिन उसने ऐसा होने के लिए मौका दिया। Third, तीसरी चीज, he promised a savior. और उसने एक उद्धारक का वायदा दिया। The moment sin entered into this world, और जिस क्षण वो पाप इस दुनिया में प्रवेश कर किया, God promised a savior. परमेश्वर ने एक उद्धारक का अभिवचन दिया। And also, after that, और उसके बाद God presented that savior. परमेश्वर ने उस उद्धारक को प्रस्तुत भी किया And that savior is today sitting at the right hand of the Father. और वो उद्धारक आज पिता के दाहिने हाथ पे बैठा है। He's praying for us, वो आज हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है interceding for us. और हमारे लिए विनती कर रहा है। Just pause for a moment. कुछ क्षण के लिए आप रुक जाइए। What Christ is doing today? आज मसीह क्या कर रहा He is है? praying for you and me unceasingly. बिना रुके वो आज आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। I think that is a mind-blowing thought. और मुझे ऐसे लगता है कि वो हमारे मन को बिल्कुल ही जैसे कि ना समझने वाला He's ऐसा विचार praying है। for me, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है praying for each one of us. और हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर The रहा है। temptations which we go through, और जो परीक्षाओं से हम गुजरते हैं, the devil's temptations, शैतान की लालसाएं the world's initiations, और ये दुनिया जो पहल करती है and like the projections which comes from our own hearts. और हमारे हृदयों से जो तीर निकल के आते हैं, Jesus is praying. यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। And lastly, आखिर में how God is defeating sin. परमेश्वर कैसे इस पाप को नष्ट करता है? Jesus Christ is going to come back. यीशु मसीह वापस आने वाला है। He is going to come back. वो वापस आने वाला है। This is a prophecy throughout the scripture. और पूरे वचन में ये भविष्यवाणी है This is so true. और ये इतना सच है। And the sin is defeated. और पाप को हराया गया है Sin will be defeated. और पाप को हराया जाएगा। Today there is a little victory coming. और आज विजय आने वाली है। But it is like a sin is taking a little triumph. और लेकिन जैसे कि आज दिखने में पाप जैसे विजयी हो रहा है, But लेकिन ultimate victory Christ has. आखिर में यीशु मसीह की जीत है This is an amazing thing. और ये अद्भुत चीज है। God says that yes, I know this is troublesome. और परमेश्वर कहता है कि हाँ, ये बहुत परेशानी वाला दिखता है Whatever we pray may not happen every time. और हर बार जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो नहीं होता है। We don't know why this situation.
और हमें नहीं पता कि ये परिस्थिति क्यों ऐसी We है। don't have all the answers. हमारे पास सारे जवाब है भी But नहीं, like Pradeep said, I think this is that time we trust the nature of God. और जैसे प्रदीप ने कहा कि उस वक्त हम परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर जैसे निर्भर हो We जाते are हैं depending on Him. और हम उसके ऊपर जैसे पूरी तरह से निर्भर हो जाते I हैं। know all this like a dark and a gloomy, like way ahead of me. और मुझे दिखता है कि बहुत ही अंधेरा और बहुत ही उदास ऐसे वातावरण है मेरे इर्द गिर्द। God says, परमेश्वर कहता है like I am going to bring out the best from this mess. और इस गड़बड़ी से मैं सबसे अच्छा चीज ही निकाल के If लाऊंगा। there is no tribulation, how the patience will come? अगर कुछ परेशानी ही नहीं है तो सहनशीलता कैसे आएगी? If there is no presence of sin, how there is a forgiveness? अगर कोई पाप ही नहीं होता तो माफी कैसे होती? There's no fear. There's no courage needed. अगर भय नहीं होता तो सामर्थ कैसे आता? All of these godly characters और ये सारे ईश्वर के गुण is coming up because in this presence of this evil. क्योंकि इस बुराई की समक्षता की वजह से। I'm just thinking about these thoughts. और मैं इन विचारों के ऊपर सोच रहा था। The moment a man sinned, और जिस वक्त मनुष्य ने पाप किया, God promised His Son. परमेश्वर ने अपने बेटे का वायदा दिया। God did not destroy this world, परमेश्वर ने इस दुनिया को नष्ट नहीं किया, but He promised His Son. उसने अपने बेटे का वायदा दिया। And this is beautifully portrayed in the scripture. और बहुत ही सुंदर चित्रण वचन में इसका दिया है। In Genesis chapter 3 verse 15 says that the seed of the woman will crush your head. और उत्पत्ति 3:15 में ये वायदा दिया है कि औरत का बीज तुम्हारे सिर को कुचलेगा And you will bruise his heel. और वो तुम्हारी एड़ी को डसेगा। And this is a prophecy for the human being. There is a promised savior. He is coming. और ये मनुष्य जाति के लिए ये एक वायदा है कि ऐसा एक मनुष्य आने वाला है। And when you read in Isaiah chapter, I just reading in Isaiah chapter 52 and 53. और यशायाह 52 और 53 जैसे मैं पढ़ूंगा, You can see this is the scripture is unfolding about the savior. और ये वचन जैसे कि उस उद्धारक के बारे में स्पष्टीकरण देता है। Promised savior. और जो वायदा किया हुआ When you उद्धारक। read this scripture, और जब आप इस वचन को पढ़ते हो, you come to the conclusion आप इस निष्कर्ष पे पहुंच what जाते हो this is talking about the savior. कि ये उस उद्धारक के बारे में ही बात करता है। As a pastor, I have the responsibility to point people to the savior. और एक पासवान होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को उस उद्धारक के तरफ उन्हें दिखाऊं। We are shepherds, but we are not saviors. हम चरवाहे हैं, हम उद्धारक नहीं हैं। We are leaders, but we are not the Lord. हम अगुवे हैं लेकिन प्रभु नहीं है। We are guides, guiding people, but we are not gods. और हम लोगों को दर्शाने वाले हैं लेकिन हम परमेश्वर नहीं हैं। But we always responsibility is pointing to Christ. और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हमेशा मसीह की ओर इशारा करें। Christ officially defeated sin and death and Satan at the cross. और यीशु मसीह ने जैसे कि क्रूस के ऊपर पाप को, मृत्यु को और बुराई को उस पर नष्ट कर दिया। But he will actually defeat sin, death, devil at his second coming. लेकिन वो सही मायने में उसके दूसरे आगमन के वक्त इस पाप को, इस मृत्यु को, इस शैतान को हराएगा। Romans chapter 16 verse 20 says. रोमियो 16 का 20 कहता है। This is a Sunday school children's song, isn't it? और संडे स्कूल के बच्चे इस गाने को गाते हैं। Romans says 16:20, right? You know this song? Romans 16 or 20. Yeah, God of peace will crush Satan under your feet shortly. और जो परमेश्वर, जो शांति का परमेश्वर है, वो शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे नष्ट करेगा। God of peace will crush Satan under your feet shortly. और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। It is going to happen और ये होने वाला है at his second coming.
उसके दूसरे आगमन के वक्त। This is also talks about in Revelation chapter 20 verse 10. और प्रकाशित वाक्य 20:10 में भी यही बातें करता Hear है। this word. इस वचनों को The सुनिएगा। devil who deceived them was cast into the lake of fire, brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. उसका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। This is not yet happened. ये अब तक हुआ नहीं है। Officially, he is defeated. Satan is defeated और देखा जाए तो शैतान को पहले ही हरा दिया गया है on the cross. क्रूस के ऊपर। But actually, he will be defeated at the Christ's second coming. लेकिन सही मायने में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के वक्त वो हराया So जाएगा। when you read the Old Testament, you can see there is a preparation of the Savior. और पुराना नियम जब आप पढ़ते हो तो आपको दिखाई देता है कि मसीहा के आगमन की तैयारी चल रही In है। the first books of the law, you see that there is a foundation of this Savior. और नियमों की पहली किताब में जैसे उस मसीहा के आने की नींव रची गई, Foundation of Christ. यीशु मसीह की नींव। But when you progressing as you read those historical books, और ऐतिहासिक किताबों को जैसे आप पढ़ते जाते हो आगे, you see that God has made a provision for this holy nation to come to the promised land. तो परमेश्वर ने इस पवित्र देश को उनके वायदे के देश में आने का प्रावधान भी बना दिया, So that they could produce a holy Savior. तो वो उस पवित्र व्यक्ति को, उस पवित्र मसीहा को पैदा कर सके। This was an expectation in the Old Testament. तो पुराने नियम में जैसे इसके लोग जैसे आशा करके देख रहे थे, This was all the meaning of, like, all the events were like, because these people are, the Israeli people are coming to this promised land. और ये सारी जो घटनाएं थी कि इजराइल लोग उस वायदे के देश में आ रहे थे। The Savior, उस उद्धारक the Holy One, जो पवित्र है, is going to come there. वो वहीं आने वाला है। That's when Galatians chapter 4 verse 4 says, इसलिए गलाती 4:4 कहता है, at this appointed time, उसके सही समय पर, right, when the fullness of the time had come. This is जब- verse says. और इसी तरीके से ये वचन कहता है कि जब समय पूरा हो जाएगा, When the fullness of time had come, God has sent His Son, born of a woman, born under the law. और परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, स्त्री के द्वारा जो उत्पन्न हुआ और नियम के अधीन जो था, So that we might receive the adoption as sons. कि हम उस ले पालकपन का खत्मे को ग्रहण कर So सकें। in the Old Testament there was an expectation तो पुराने नियम में ये ऐसी एक आशा थी and about this Savior. उस उद्धारक के बारे में। That's why I want to read it today तो उसी के बारे में आज मैं पढ़ना चाहता and हूँ then make some comment. और उसके बारे में कुछ कमेंट This is in करूँगा। Isaiah chapter 52 और यशायाह 52 में verse 13. और वचन 13, This is talks about Jesus Christ. और ये यीशु मसीह के बारे में बात करता He is है। not yet born, अब तक इसका जन्म नहीं like हुआ at है, this time of prophecy. जब ये भविष्यवाणी की गई Almost 600 years before, 600 or 700 years before. 600 से 700 साल पहले ये भविष्यवाणी Here की। the Isaiah is saying, और यहाँ पे ऐसे कहा है, Behold, देखो, my servant shall deal prudently. He shall be exalted, extolled, and be very high. देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। Just as many were astonished at you, his visage was marred more than any man, his form more than the sons of men. जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि वो मनुष्य का सा जान न पड़ता था। I think about that verse. और इस वचन के बारे में मैं सोच रहा था, Why this happened? क्यों ऐसे हुआ, Why this type of savior has to be come? क्यों इस तरह से एक उद्धारक को आने की जरूरत थी? Because God is defeating sin. क्योंकि परमेश्वर पाप को हरा रहा है, He could have been created a clean world, nobody will choose to sin. और परमेश्वर एक साफ सुथरी दुनिया बना लेता, उसमें कोई पाप करने की जरूरत ही नहीं Yeah, of होती, course, like robots और एक यंत्र मानव की जैसे, or like rocks. या फिर पत्थर के जैसे। But God didn't create like that. परमेश्वर ने ऐसे नहीं बनाया, लेकिन He created it with the love. परमेश्वर ने प्रेम से बनाया He created with the full of His wisdom. और अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से रचा।
But knowing that ये जानते हुए his son has to be like this, उसके बेटे को ऐसा होना पड़ेगा, he created with a price. और उसने उस कीमत के साथ उस रचना को He knew बनाया, that this world is going to be going against them, against him. और वो जानता था कि ये दुनिया उसके विरोध में जाने ही वाली है, But he did that. फिर भी उसने किया। He didn't have to create. उसे करने didn't की have to जरूरत create. नहीं थी, उसे करने की But जरूरत नहीं थी, he wants to do that. लेकिन वो ऐसे करना चाहता है। That's the amazing grace of God. ये परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह है। Nothing takes surprise for God, in the eyes of God. परमेश्वर की नजर में कोई दूसरी कीमत ही नहीं। He knew all these things had happened. उसे पता था कि ये चीजें होने वाली But है, that's what Revelation chapter 12 says, that like the lamb that's slain before the foundation of the world. इसीलिए प्रकाशित वाक्य 12 कहता है कि वो मेमना जो इस दुनिया के रचने से पहले ही मारा गया था। Revelation chapter 13 verse 8. I'm sorry, Revelation 13:8. The lamb that's slain before the foundation of the world. प्रकाशित वाक्य 13:8 वो मेमना जो इस दुनिया की रचना से पहले ही मारा गया था, Oh, this is his servant. और ये उसका सेवक दास है, His face will be marred. और उसका चेहरा खराब किया जाएगा, He's not looks like a man. और वो आदमी के जैसा भी नहीं दिखाई देगा, His bones will be seen. और उसकी हड्डियां दिखेगी। Verse 15, he shall startle many nations, kings shall shut their mouths at him. What had not been told them, they shall see. What they had not heard, they shall consider. वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बातें देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी न थी। Chapter 53, verse 1, और वो अध्याय 53 का 1, Isaiah is saying that who has believed our report, और यशायाह कहता है कि किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया, whom has the arm of the Lord revealed. और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। In Psalm chapter 8, he created this world with fingers. और भजन संहिता 8 में लिखा है कि उसने इस दुनिया की रचना अपनी उंगलियों से की। In the Old Testament Exodus, he brought the Israeli people out of Egyptian bondage by his strong hand. और निर्गमन में कि उसने इजराइल लोगों को दूसरे देश से अपने सामर्थ्य बल वाली भुजा से, बाहु से बाहर But निकाला। now for the salvation of the human being, लेकिन अब जो मनुष्य का जो उद्धार, मनुष्य जाति का जो उद्धार है, is doing with his arm. वो अपने हाथ से अपने कर रहा है। What an amazing God. और कितना अद्भुत परमेश्वर है। Verse 2 says that he shall grow up before him as a tender plant, as a root out of a dry ground. He has no form or comeliness. For when we see him, there is no beauty that they should desire him. क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। I know you may read these verses. मुझे नहीं पता, आपने शायद इन वचनों को पढ़ा I होगा, think this is amazing, so fresh और ये इतना अद्भुत और इतना ताजा है about our Savior. हमारे उद्धारक के बारे में। Yes, I go through pain, हाँ, मैं परेशानी से गुजरता हूँ, but we are defeating sin gradually. लेकिन धीरे धीरे हम पाप को नष्ट कर रहे हैं। When Christ born in Israel, जब यीशु मसीह का जन्म इजराइल में हुआ, Israel was like in a desert. I'm talking in a figurative way. और मैं एक चित्रण के रूप में बात कर रहा हूँ कि इजराइल जैसे रेगिस्तान था, Like spiritually as well as politically. और राजनीतिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, But he grown up like a tender plant, लेकिन वो एक ऐसे कोमल पौधे के जैसे बड़ा हुआ, root out of a dry ground. और जैसे सूखी हुई भूमि He में has जैसे, no form, no beauty. और उसके अंदर कुछ सुंदरता ही नहीं थी, कोई अच्छा दिखने वाला भी चेहरा He नहीं has था, no glory, और उसके ऊपर कुछ महिमा ही नहीं so थी that we should desire him. कि हम उसकी इच्छा करें। Verse 3 talk, he was despised, he was rejected by men, man of sorrows, acquainted with grief. We hide, as it were, our faces from him. He was despised, we did not esteem him. वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फिर लेते। वह तुच्छ जाना गया
और हमने उसका मूल्य न जाना। What he was doing for us. वो सब हमारे लिए कर रहा था We thought, okay, God is punishing him. और हम सोच रहे थे कि परमेश्वर उसे सजा दे रहा है We were thinking, we are good people. और हम सोच रहे थे हम अच्छे लोग हैं। If you read verse 4, और अगर आप वचन 4 पढ़े तो he's carried our grief. और उसने हमारे ही दुखों को उठा लिया He carried our sorrows. और हमारे ही तकलीफों को Verse उठा 4. लिया। We esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. Chastisement for our peace was upon him. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। Oh, it's amazing. और ये अद्भुत है। Our iniquities, हमारी बुराई, our sin, हमारे पाप, our transgressions, हमारे अपराध, our sorrows. हमारे दुख। We thought, okay, God is disciplining him. और हम सोच रहे थे कि परमेश्वर उसे सजा दे रहा है। God was defeating sin. नहीं, परमेश्वर उस पाप को नष्ट कर रहा था, हरा रहा था। He took this way, और उसने ये रास्ता अपनाया, the way of the cross. क्रूस का रास्ता। No man ever thought. किसी मनुष्य ने सोचा ही नहीं था। If they knew that, they would not have been crucified the Lord of glory. अगर वो जानते तो उस महिमा के परमेश्वर को कभी क्रूसित ही नहीं करते। It's like the two sons in the Luke chapter 15 story. लूका 15 में उन दो बेटों की कहानी के जैसे। Father is doing everything for the children. और पिता सारी चीजें अपने बच्चों के लिए ही कर रहा है। And the one is far away physically and morally, the younger son. और जो छोटा बेटा है वो शारीरिक रूप से और नैतिक रूप से बहुत ही दूर चला गया And है। another son in the house, but he is far away. He is much like far away from his father. और दूसरा जो बेटा है जो घर में होके भी अपने पिता से बहुत ही दूर है। Why? क्यों? Because he didn't know that he was lost. क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो खोया हुआ है। He didn't know that he wanted a savior. उसे ये भी नहीं पता था कि उसे उद्धारक की जरूरत है। Because he is so satisfied with his works. क्योंकि वो अपने कामों से ही इतना संतुष्ट था। He was so satisfied with his good moral. He says that in Luke chapter 15, I have never transgressed your commandments. और वो अपने ही अच्छे कामों में इतना खुश था, इसलिए लूका 15 में वो कहता है कि मैंने तुम्हारे आज्ञाओं का कभी उल्लंघन ही नहीं किया। By convention, by standard methods in this world, और इस दुनिया में एक तरीके का, एक स्तर का जैसे बर्ताव है। the younger one is bad. देखने में जाए तो छोटा हमको बुरा दिखता है The older one is good. और बड़ा वाला अच्छा दिखाई देता है। But for both of them, लेकिन अगर उनको दोनों का अगर तुलना करें तो for both of them, God, the Father has to go out. उन दोनों के लिए पिता को बाहर जाना पड़ा। What a savior we have. कितना अच्छा उद्धारक है हमारा। When we consider Isaiah 53, यशायाह 53 में अगर हम देखें, he did this उसने ये किया to defeat the sin, defeat the devil. उस पाप को हराने के लिए, उस शैतान को हराने के लिए। You can read these verses. इन वचनों को हम पढ़ सकते हैं This is so powerful verses. और इतने अद्भुत और प्रभावी वचन है। Considering the savior. उस उद्धारक के बारे में सोचना। So God created the world with man, with a free will, power to choose. और परमेश्वर ने इस दुनिया की रचना रची मनुष्य के साथ, स्वेच्छा के साथ। Second, he allowed the man to fall. और दूसरी चीज, उसने मनुष्य का पतन होने दिया। He promised a savior. और उसने उद्धारक का भी वायदा दिया। That savior, he presented the savior. और उसने उद्धारक को प्रस्तुत भी किया। And today that savior is interceding for us. और आज वो उद्धारक हमारे लिए प्रार्थना विनती कर रहा है। But then लेकिन he is coming. इसके बाद वो आने वाला है। He is coming वो आने वाला है to
remove this sin इस पाप को नष्ट करने के लिए, forever and ever. हमेशा के लिए। My daughter and myself were watching a football match last week. पिछले हफ्ते मेरी बेटियां और मैं फुटबॉल के एक मैच देख रहा था, Real Madrid and some club, Real Madrid, Barcelona. रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में। And you know that, like, if you know the football, you know these famous players, Ronaldo and against Messi, Lionel Messi. अगर आप फुटबॉल जानते हो तो आप इन दो जाने माने खिलाड़ियों को जानते हो, रोनाल्डो और लियोनेल When I मेसी। watch football, my feet go up, okay, because I'm into it. जब मैं फुटबॉल देखता हूँ तो मेरे पैर ऊपर होने लगते हैं क्योंकि मैं इतना उसमें ग्रसित It हो was जाता हूँ। it was like a fighting match. Like और बिल्कुल ही जोड़ तोड़ वाला जैसे then I noticed मैच this वाला, डाई वाला। this match was happened 2017. लेकिन जब मैंने देखा ध्यान से तो 2017 में ही ये मैच हो गया था। They know already who is the victor. और वो जानते हैं कि पहले ही कि कौन जीता हुआ है, But we are watching it. लेकिन हम देख रहे हैं। You already know the outcome if you fast forward it. अगर हम आगे करके देख लेंगे तो हमें पता ही होगा हो जाता है कि कौन जीता। Christ defeated sin at the cross यीशु मसीह ने ऑफिशियली उस क्रूस पर पाप को हरा दिया। And now लेकिन अब he is defeating sin अब वो पाप को हरा रहा है through us हमारे द्वारा, gradually. धीरे धीरे करके। The decision we make जो निर्णय हम लेते हैं by the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा through submitting to this word of grace, और इस अनुग्रह के वचन के अधीन होकर we are हम getting victory. विजय पा रहे हैं। Yes, there is sickness. हाँ, बीमारियां हैं, It's real. वो सच है, It's painful. और परेशानी भी है। You think about, like, when a member of the family goes through a sickness, we know how much pain it is. और हम जानते हैं कि जब हमारे परिवार का कोई व्यक्ति बीमारी से गुजरता है तो कितनी परेशानी होती है। God says, परमेश्वर कहता है, I am producing godly products. और परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर के सामान को बना रहा हूँ And defeating sin. और पाप को हरा रहा हूँ, Defeating sin. पाप को हरा रहा हूँ। This is 2 Peter chapter 1 says that by his divine nature is what's in us. और दूसरा पत्र से में कहता है कि उसके ईश्वरीय स्वभाव के जो हमारे अंदर काम करता है, Divine nature. और जो ईश्वरी जो स्वभाव है जो हमारे अंदर काम करता है। There is real issues in this world. हाँ, सच में इस दुनिया में ऐसे विषय हैं जो सच में परेशानी के हैं, We also affected by that. और हम उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। But the day is coming. लेकिन ऐसा दिन आने This वाला is है। what the Bible says in 1 Corinthians chapter 15 verses 24. पहला कुरिन्थियों 15 के 24 में ये बाइबल कहती है, It says this way, I just read it. और मैं पढ़ूंगा, इसमें ऐसे लिखा है। Then comes the end. When he delivers the kingdom to the Father, God the Father, when he puts an end to all rule and all authority and power. इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। He must reign till he has put all enemies under his feet. The last enemy that will be destroyed is death. क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न लाए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है, और सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। He has put all things under his feet, but when he says all things are put under him, it is evident that he has put all things under him. He is accepted. क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। This is the victory. और ये विजय है। In God's mind, परमेश्वर के मन में it's already happened. ये हो चुका है, But today we are watching. लेकिन आज We जैसे are playing. हम देख रहे हैं, हम खेल रहे हैं, We are getting victory. और हम धीरे धीरे उस विजय को हासिल कर I रहे just हैं। read it in the second coming of Christ. और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में मैं पढ़ूंगा। You see, this is verses in Revelation chapter 21.
और प्रकाशित वाक्य 21 में आप इन वचनों को देखिएगा। Chapter 21, verse 1 onwards. 21 के वचन 1 के आगे। Now I saw in new heaven, new earth, the first heaven, the first earth had passed away. Also there was no more sea. फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। I excited. This is amazing. और क्या आप एक्साइटेड है, क्योंकि ये इतना अद्भुत है। Yes, there is pain, there is cancer, there is virus, हाँ, परेशानी है, कैंसर है, वायरस है, there is money issue. पैसों की तकलीफ है, But this is what God says. लेकिन परमेश्वर कहता है। I got verse 2. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. फिर मैं यूहन्ना ने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह अपने दुल्हन के समान थी, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. He will dwell with them. They shall be his people. God himself will be with them and be their God. फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। Verse 4, God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, no crying. There shall be no more pain, for the former things are passed away. वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति। What a promise. कितना अद्भुत वायदा है। This is our expectation. और यही हमारी आशा है। But till then, तब तक we are growing in the Lord, हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, trusting in the Lord, परमेश्वर पर भरोसा रखते depending हैं, on the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर है, defeating the devil और शैतान को हरा रहे हैं, and defeating sin. और पाप को भी हरा We रहे are not हैं। sin conscious हम पाप के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, or devil conscious. या फिर शैतान के बारे में। I want to say that लेकिन मैं ये कहना sometimes we चाहूंगा, can be instruments for demons. हम शैतान के लिए एक ऐसे औजार बन जाते He's an हैं। accuser of the brother, and it's written in the Revelation. प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो भाइयों के बारे में जैसे दोष लगाता है। Don't listen to a gossip. और कोई भी गॉसिप को मत सुनिएगा। Like it is very tasty in the beginning. शुरुआत में बहुत ही स्वादिष्ट लगता It is है, going to create a huge problem लेकिन बाद में वो बड़ी परेशानी तैयार in करता your है। life, आपके जीवन में, your life with Lord, परमेश्वर के साथ आपके and your जीवन में, life with the person whom you heard. और जिस व्यक्ति से बारे में आपने सुना है Let उसके साथ। judgment, let that judgment belongs to the Lord. और न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। Who am I? मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कौन हूँ? No, we have victory. हमारे पास विजय है। When Jesus came and Matthew chapter 8, the devil said, did you come early before time? और मत्ती 8 में जब यीशु मसीह वहां पर थे तो शैतान ने उससे पूछा कि क्या तुम समय से पहले ही आ गए? In Revelation it says that the devil knows that his time is too short. प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि शैतान जानता है कि उसका समय बहुत ही थोड़ा है, He knows his destiny. और वो जानता है कि वो उसकी जगह He कहाँ है, also knows the time is short. और वो ये भी जानता है कि उसका समय बहुत कम है। He is going to be defeated actually when Christ comes. और जब यीशु मसीह आएगा तो उसको वो हार जाएगा, ये वो जानता है। Let's live in this victory. तो आइए उस जीत में जिए, Let's live in that like a victorious way. और उस विजयी तरीके से हम जिए। And each decisions in our day-to-day life और हमारे दिन भर के हर एक निर्णय में is so important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Bringing glory to Lord. परमेश्वर को महिमा लाना। But if I fail, अगर मैं गिर जाता हूँ, embrace the grace of God immediately. तुरंत परमेश्वर के अनुग्रह को गले लगा The लीजिए, restoration. और उस वापस मेल मिलाप It's a को। gift from the Lord. ये परमेश्वर की तरफ से तोहफा है। Don't be too far away. ज्यादा दूर मत रहिए, Come to the Lord. परमेश्वर के करीब आइए, Come and send like the need of the Savior. और उस उद्धारक की जरूरत है आपको। Because the elder son said, like, I never transgressed.
और बड़े भाई ने क्या कहा, मैंने तो कुछ गलत किया ही I नहीं, never transgressed. मैंने कभी कुछ गलत नहीं He किया। didn't need a savior. उसे उद्धारक की जरूरत नहीं थी He is like totally occupied with his own works. और वो अपने पूरे अपने कामों में ही फंसा हुआ था। I want this मुझे ये चाहिए because I was so obedient. क्योंकि मैंने इतना आज्ञा पालन He किया। was obedient so that he want things from God. वो आज्ञा पालन इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको परमेश्वर से चीजों की He जरूरत didn't थी, want God. उसको परमेश्वर नहीं चाहिए था। I think this is important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Like I want God. मुझे परमेश्वर की जरूरत है। John Calvin says, जॉन कैल्विन करके व्यक्ति कहते you हैं, want to see a man going for destruction? और क्या आप चाहते हो कि एक मनुष्य नाश की तरफ जाए, Leave the man to his own way. तो उस मनुष्य को अपने तरीके पे छोड़ दो। That's why Proverbs 14 says that. और नीति वचन 14 यही कहता है, All the ways of the man seems to be right. और मनुष्य के नजर में सारे रास्ते सही है, But the end is death. लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। But we are people लेकिन हम ऐसे लोग हैं indwelt with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा बसे हुए, having the word of grace, अनुग्रह का वचन हमारे पास है, body of Christ around. और मसीह की देह हमारे इर्द गिर्द है। What a privileged people. और हम कितना जैसे बड़प्पन की बात है कि हम ऐसे लोग हैं। Amen. आमीन। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता, हम धन्यवाद करते हैं Thank you for this wonderful day. इस अद्भुत दिन के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। We were lost, हम खोए हुए थे परमेश्वर, lost forever. हमेशा के लिए खोए हुए। We were slaves to sin and devil. और हम पाप और इस शैतान के जैसे मजदूर दास हो गए थे। But thank you for the Savior लेकिन धन्यवाद करते हैं उस उद्धारक के लिए, who came and his face was so marked. वो आया और उसका चेहरा इतना बुरा बन गया था। Thank you for dying on the cross. धन्यवाद उस क्रूस पर मरने के लिए। We are so thankful, Lord. हम इतना धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। What a great Savior we have. कितना अद्भुत उद्धारक है हमारा। All this he did for his love's sake. और ये सारी चीजें उसने अपने प्यार के लिए की। Thank you, Lord, धन्यवाद for the करते हैं forgiveness. परमेश्वर इस माफी के लिए। At this point of time, if anyone listening this message, इस वक्त अगर कोई व्यक्ति इस संदेश को सुन रहा है, say this simple prayer. एक साधारण सी प्रार्थना कर सकता है, Jesus, forgive me. यीशु मुझे क्षमा करो, I need this forgiveness. मुझे इस क्षमा की जरूरत है, I need peace from you. और मुझे आपसे शांति चाहिए। Jesus, save me. यीशु मसीह मुझे बचाओ। Amen. आमीन। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Father, we need a fresh revelation about yourself. पिता, हमें आपकी तरफ से एक नया प्रकाशन चाहिए। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। Word of God, revival in our own lives. परमेश्वर के वचन का रिवाइवल हमारे खुद के जीवन में। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं Once पिता। again, we give everything into your hands. एक बार और हम सारी चीजें आपके हाथ में सौंप देते हैं। All our family members, Lord. हमारे हर एक परिवार के व्यक्ति को आपके हाथ में सौंप Thank you देते for the healing of those COVID patients, our church relatives, Lord. हैं। और हमारे कलीसिया के जो लोगों के जो रिश्तेदार हैं उनको चंगाई देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Lord, protect our members, Lord. हमारे लोगों को सुरक्षित रखिए Provide परमेश्वर, our people, provide, Lord, our people, Lord. और हमारे लोगों को सारे जो प्रावधानों की जरूरत है उन्हें आप जरूर दीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Thank you. As we end the service, let's all sing this song. Blessed be your name. We worship you, Lord. Everyone together. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Oh, Blessed be your name. Blessed be your name
when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, Lord, turn that to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be your name, when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be, blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, there's pain in the offering, blessed be your name. Every blessing you pour out, Lord, turn that to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. You give and take away, you give and take away, my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. One more time. You give and take away, you give and take away, my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. See you all next Sunday. God bless you.